جب میں نے شادی کے بعد اپنے سسرال میں قدم رکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی رقص کر رہی تھی۔ ہر نئی دلہن کی طرح میرے خواب بھی تھے، ایک محبت کرنے والا شوہر، ایک اپنائیت بھرا گھر اور ایک مشفق ساس، مگر ایک اندرونی آواز مسلسل سرگوشی کر رہی تھی کہ شاید سب کچھ اتنا آسان نہ ہو۔ میرا شوہر اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور یہ خیال مجھے پریشان کرتا تھا کہ وہ کہیں اپنی ماں کی باتوں میں آ کر میرے ساتھ سخت رویہ نہ اپنا لے۔ میں نے خود کو تسلی دی، محبت اور احترام کے ذریعے ہم ضرور ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے، لیکن دل کی گہرائیوں میں چھپا ایک خوف تھا کہ اگر وہ میرے لیے سخت ہوں تو میں کیسے اس نئے رشتے اور ماحول کو سنبھالوں گی۔ پہلی ملاقات کے دن ہی میری آنکھوں کے سامنے ایک حیران کن اور کچھ حد تک خوفناک منظر تھا۔ میرا شوہر اپنی ماں کے ساتھ بالکل بات نہیں کرتے تھے، وہ اکثر خاموش رہتے، جیسے کمرے میں ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود نہ ہوں۔ کھانے کی میز پر بھی ان کی گفتگو کم ہوتی تھی۔ شروع میں نے سوچا شاید یہ تھکن یا روزہ مرہ کی مصروفیت کی وجہ سے ہے، لیکن بہت جلد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ دکھ اور پرانی تلخیوں کی ایک گہری جڑ ہے۔ میری ساس کا رویہ بھی عجیب تھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ میرے سامنے بہت کم مخاطب ہوتی تھی، کبھی کبھار صرف نظر اٹھا کر دیکھتی، کبھی ایک بے جان سی مسکراہٹ، مگر بات چیت نہ ہونے کے برابر۔ ان کے اس سرد رویے نے میرے دل میں ایک خلا پیدا کر دیا۔ میں اکثر سوچتی کہ آخر یہ سرد مہری کیوں ہے؟ کیا وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ کیا میرے شوہر ہمیشہ اپنی ماں سے دور رہیں گے؟ اس گھر میں جذباتی دوریوں کی ایک اندیکھی دیوار کھڑی تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شروع کے دنوں میں مجھے لگا شاید یہ پرانی ناراضگیاں ہیں یا ماضی کی کوئی تلخ یادیں جنہوں نے ان کے رشتوں کو مجمد کر دیا ہے۔ میں نے خود کو قائل کیا کہ وقت کے ساتھ یہ فاصلے ضرور ختم ہو جائیں گے، لیکن 3 سال کا عرصہ بیت گیا، ان فاصلوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں ایک بچے کی ماں بن چکی تھی، مگر تب بھی میں نے کبھی اپنی ساس اور شوہر کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کھل کر بات کرتے ہوئے یا خوشی کا کوئی لمحہ بانٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہر دن میں حیران ہوتی کہ یہ فاصلے کیوں ہیں، یہ سرد رویے کیوں؟ میں اکثر رات کو اپنے بچے کو دیکھ کر سوچتی کہ شاید اس معصوم کی موجودگی سے حالات بہتر ہو جائیں۔ میں نے روزہ مرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے احسانات کرنے کی کوشش کی، شوہر کی پسند کے کھانے بنائے، اپنی ساس کے لیے نرمی اور احترام دکھایا، مگر ان کا رویہ وہی سرد اور دوری والا رہتا۔ میری تمام کوششیں اس برف کی دیوار سے ٹکرا کر واپس آ جاتی۔ میرے شوہر کا رویہ اپنی ماں کے ساتھ واقعی عجیب اور اذیتناک تھا۔ وہ نہ صرف بات نہیں کرتے تھے بلکہ اکثر سخت اور غیر مہذب رویہ اختیار کرتے۔ مجھے یاد ہے ایک بار ساس نے کسی بات پر مشورہ دیا تو میرے شوہر نے انتہائی غیر شائستہ انداز میں نے ٹوک دیا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ ان کے درمیان خوشگواری پیدا کروں، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ دکھائی دیتے تھے۔ میں حیران رہ جاتی کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اتنی دوری کیسے رکھ سکتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ وسوسہ بھی آتا کہ کیا یہ سب پرانی یادوں اور تلخ تجربات کی وجہ سے ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اکثر خاموشی اختیار کر لیتے۔ تب ایک خوف میرے دل میں بیٹھ گیا، جو آدمی اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے وہ میرے ساتھ بھی کبھی اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ رشتوں کی عزت کرنا جسے نہیں آیا وہ ایک نئے رشتے کو کیا اہمیت دے گا؟ میرے دل میں ہر روز یہ سوال گردش کرتا رہا کہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ احترام اور محبت کا رشتہ برقرار نہیں رکھا تو وہ مجھے کیسے عزت دے گا؟ یہ سوچ کر میرا دل ٹوٹ جاتا اور میں اکثر آنسوؤں میں راتیں گزارتی۔ میں نے کئی بار اپنے والدین سے بات کی، سوچا شاید ہمیں رہ کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن میرے والدین بھی چاہتے تھے کہ میں خود اپنے گھر میں خوش رہوں اور اپنے فیصلے خود کروں۔ میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ میرے صبر اور محبت کے ذریعے یہ رشتہ بہتر ہوگا۔ میں ہر روز گھر کے کاموں میں لگتی، بچے کی دیکھ بھال کرتی اور اپنی ذمہ داریوں میں مصروف رہتی، لیکن ہر دن میں یہ محسوس کرتی کہ گھر میں محبت اور سکون کی ایک گہری کمی ہے۔ میں اکثر رات کو اپنے بیٹے کو گود میں لے کر سوچتی کہ اگر والدین کے درمیان اتنی دوریاں تو بچے کی تربیت اور اس کی خوشی کے لیے یہ ماحول کس حد تک محفوظ ہے؟ کیا وہ بچہ جو صرف دوری اور سرد مہری دیکھ کر بڑا ہوگا کبھی ایک خوشگوار زندگی گزار پائے گا؟ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ رشتہ بہتر ہو، لیکن ہر دن یہ فاصلہ اور سرد مہری میرے دل کو مایوسی اور اکیلے پن سے بھرتی رہی۔ 3 سال میں نے یہ سخت سبق سیکھا کہ کبھی کبھی فاصلے صرف ظاہر نہیں ہوتے بلکہ پرانی یادیں اور اندرونی تلخیاں انسانوں کے رویوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہیں۔ میرے سسرال کے پہلے 3 سال کے بعد میں نے اپنے شوہر اور ساس کے درمیان کبھی خوشگواری یا قربت کا ایک لمحہ بھی نہیں دیکھا۔
हर दिन मैं इन फासले और सर्द रवैये को देखकर अपने दिल में सवाल उठाती कि आखिर ये दोनों इतने मुखालिफ क्यों। अब मेरे दिल में ये खौफ और हैरत बढ़ती गई कि अगर वो एक दूसरे के साथ इस तरह बर्ताव करते हैं तो मुझे अपने शोहर के रवैये से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। मेरा शोहर अक्सर दिन भर अपने कमरे में रहते, एक गहरी खामोशी इख्तियार करते और कोई बात न करते। जब कभी मैं उनसे सवाल किया कि क्यों ऐसा है तो वो सिर्फ नज़रें झुका लेते। उनकी आंखों में कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी मायूसी के आसार दिखाई देते, लेकिन वो कभी भी अपने जज्बात खुलकर बयान नहीं करते थे। वो एक ऐसे कुएं की तरह थे जिसमें कोई आवाज़ डाले तो सिर्फ गूंज वापस आती है। मैं अक्सर सोचती कि शायद ये सब पुरानी यादों और तलख तजर्बात की वजह से है, लेकिन दिल के किसी कोने में ये शकूक रहते कि अगर वो अपनी माँ के साथ ये रवैया अख्तियार कर सकते हैं तो मेरे साथ क्या करेंगे। खून के रिश्ते को जो ना संभाल सका वो एक अजनबी को कैसे अपनाएगा। मेरी सास के रवैये में भी एक खास सख्ती और ठहराव था। वो अक्सर अपने बेटे के करीब तो बैठती, लेकिन उनकी गुफ्तगू कम और अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता कि उनके दिल में क्या है। कभी कभी वो सिर्फ मेरी तरफ देखकर एक मुख्तसर सी मुस्कुराहट देती, लेकिन वो भी अक्सर खामोश रहती थी। मैंने शुरू में सोचा कि शायद वो मुझे जानने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दिन गुजरते गए और ये मुस्कुराहटें भी कम होती गई। मुझे यूँ लगा जैसे उनके दिल में कोई ऐसा बोझ है जिसे वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। मैंने अपने दिल में फैसला किया, मैं सब्र का दामन नहीं छोड़ूंगी, मोहब्बत और सब्र के जरिए उनके दिल जीतने की कोशिश करूंगी। मैंने अपने शोहर के पसंद के खाने बनाए, उनके कपड़ों और रोज़मर्रा की छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखा और अपनी सास के लिए नरमी और एहतराम ज़ाहिर किया। मैंने जो सोचकर खुद को मुतमईन किया कि शायद एक दिन ये सर्दी ख़त्म हो जाए और हम सब एक दूसरे को समझ आए। रिश्ते टूटते नहीं, इन्हें वक्त देना पड़ता है। मेरे दिल में हर ये सवाल गर्दिश करता रहा कि अगर कोई अपने माँ बाप के साथ ये रवैया रखता है तो मुझे कैसे इज्जत देगा। रात के वक्त मैं अपने बेटे को देखकर सोचती कि बच्चे की खुशी और तबीयत के लिए ये माहौल कैसा है। मैंने महसूस किया कि सिर्फ मोहब्बत और सब्र से सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन मैंने महसूस किया कि मेरे शोहर के रवैये में एक और तलख पहलू भी है। वो अक्सर अपनी माँ की बातों में आकर मेरे लिए गैर ज़रूरी सख्ती इख्तियार करते। छोटे छोटे कामों पर वो मुझे बेजा तनकीद का निशाना बनाते। मैंने कई बार दिल ही दिल में सोचा कि अगर वो अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते तो मुझे कैसे सहारा देंगे। क्या वो हमेशा अपनी माँ के इशारों पर ही चलेंगे। ये सोचकर मेरे दिल में गुस्सा और मायूसी दोनों बढ़ गए, लेकिन मैंने बाहर की दुनिया के लिए एक मसनूई सब्र दिखाया। मैंने एक बार फिर अपने घर वालों से बात की और उनसे मदद मांगी कि शायद कोई मशवरा या रास्ता मिले कि कैसे मैं इस फासले को कम कर सकूं। वालिदैन और बहनें मुझे समझाने लगी कि अपने घर की खुशी और बच्चों की खातिर सब्र और तहम्मुल ज़रूरी है, लेकिन मैंने खुद फैसला किया कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि ये तअल्लुक़ बेहतर हो, चाहे कितनी भी मुश्किलात आएँ। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किल ये थी कि मैंने अपनी सास और शोहर को एक साथ कभी खुश या करीब नहीं देखा। हर दिन मैं सोचती क्या वाकई मोहब्बत और खुलूस का रिश्ता सिर्फ दुख और फासले में ख़त्म हो गया है। आखिरकार एक दिन मैंने फैसला किया कि हम सब बाहर खाना खाने चलेंगे, और इस बार मैंने ये शर्त रखी कि मेरी सास भी हमारे साथ जाएंगी। मैंने दिल में सोचा कि आज मैं अपनी कोशिशों से सारी गलत फहमियाँ दूर करूँगी, अच्छे माहौल में खुलकर बात करूँगी और शायद रिश्ता कुछ बेहतर हो जाए। मैंने हर लम्हे अपने दिल में तैयारियाँ की, ये मुलाकात खुशगवारी के लिए हो। मैंने बेहतरीन लिबास पहना, बच्चों को तैयार किया और एक उम्मीद के साथ घर से निकली। मगर जैसे ही खाने का वक्त आया और हमने बैठना शुरू किया, जैसे ही मेरे शोहर ने कोई सख्त जुमला कहा, मेरी सास के हाथ से प्लेट गिर कर किरची किरची हो गई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मेरी आंखों के सामने जो मंजर था वो मुझे तोड़कर रख देने वाला था। मेरे शोहर ने अपनी माँ पर काबू पाकर सख्त बातें की और गुस्से में उनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। माहौल में एकदम से खामोशी छा गई। मैं दंग रह गई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। मुझे लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया और मेरे इर्द गिर्द सब लोग हमें हैरत से देख रहे थे। ये मंजर मेरे दिल में एक गहरा सदमा और यकीन छोड़ गया। मैंने महसूस किया जो आदमी अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक कर सकता है वो मेरे साथ भी कभी अच्छा सलूक नहीं करेगा। जिसे अपनी माँ की इज्जत करना नहीं आता वो मुझे कैसे इज्जत देगा। ये सोचकर मैंने फैसला किया कि अपने बच्चों की खुशी के लिए और अपने आप के सुकून के लिए मुझे अब अपने शोहर के साथ रहना मुनासिब नहीं। मेरे लिए सबसे अहम मेरे बच्चों का मुस्तकबिल था और मैं नहीं चाहती थी कि वो इस तरह माहौल में परवान चढ़े जहाँ रिश्तों की कोई कदर नहीं। मैंने अपने वालिदैन से मदद ली और खुला का किस कर दिया। नवंबर के बाद से मेरे और शोहर के दरमियान तमाम बातें बंद हो गई। वो मुझे मनाने की कोशिश करते रहे, घर वालों को भी भेजा, मगर मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने बच्चों और अपनी ज़हनी सुकून के लिए ये सख्त फैसला किया था कि मैं अपने फैसले पर कायम रहूँगी। मैंने अपने दिल के टुकड़ों को संभालने का फैसला कर लिया था। कुछ दिन बाद मुझे अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए ससुराल जाना पड़ा। मैं हैरान हुई कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंची, मेरे शोहर की हालत
देख कर मेरी रगें काँप उठी। वो बिल्कुल मजनू जैसी हालत में थे। उनके चेहरे पर और दाढ़ी के बालों में कोई संजीदगी नहीं थी। उन्होंने मुझे देखा और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे, जैसे उनके अंदर का सारा दुख और पछतावा आंसुओं की शक्ल में बह रहा हो। उनका रूप देखकर मेरा दिल पसीज गया। उनका सारा गुरूर और सख्ती खत्म हो चुकी थी। उनकी हालत देखकर मुझे उन पर तरस आ गया। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़े और माफ़ी मांगी। कसम खाई कि अब वो कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो मुझे बुरा लगे। वो टूट चुके थे। मैंने उनकी आंखों में सच्चाई और पछतावा दोनों देखे। उस एक लम्हे में मुझे लगा शायद ये एक मौका है, एक नया आगाज़ है। मैंने अपने बच्चों के रोशन चेहरों को याद किया जो उनके बगैर उदास थे। मैंने खुला का केस वापस ले लिया और अपने बच्चों की खातिर एक आखिरी उम्मीद लेकर अपने घर वापस आ गई। जब मैं अपने घर वापस आई तो मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून और खौफ दोनों थे। सुकून इसलिए कि मैं अब अपने बच्चों के साथ एक महफूज माहौल में थी, और खौफ इसलिए कि मुझे अभी तक अपने शोर के अंदर छुपी तलखी और माजी के असरात का सही अंदाज़ा नहीं था। मैंने दिल में ये फैसला कर लिया था कि ये मेरी तरफ से आखिरी मौका है। जैसे ही मैंने अपने घर के दरवाजे को खोला, मैंने महसूस किया कि माहौल मुख्तलिफ है। मेरे शोर ने ना सिर्फ बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर दिया, बल्कि वो खुद भी मेरे करीब आने लगे। वो अब माजी की तरह सर्द और दूर नहीं थे। उनकी आंखों में कोई सख्ती नहीं थी, बस एक पुरस्कून और दिल में मोहब्बत भरा इजहार था। उनके रवैये में एक गहरी तब्दीली आ चुकी थी। वो हर वक्त अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते, इन्हें कहानी सुनाते, मेरे छोटे छोटे कामों में मेरी मदद करते। कभी कभी वो खामोशी से मेरे पास आते और सिर्फ मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देते, जैसे कि माजी की तलख यादों को बुलाकर वो एक नए आगाज़ के लिए तैयार हों। मैंने कई बार उनसे बात की कि हमें अपनी ज़िंदगी में माजी के ज़ख्मों को भूलना चाहिए। मैंने कहा, माँ तो माँ होती है, उनका एहतराम करना ज़रूरी है। आपको उनकी कब्र पर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके लिए सदका और खैरात करनी चाहिए ताकि उनका सवाब आपको मिले। लेकिन वो अक्सर मेरी बातों को नज़रअंदाज करते या बस दिल बर्दाश्त सा नजर आते। उनका चेहरा फ़ौरन उदास हो जाता। मैं समझ गई कि उनके दिल में माजी की तलखी इतनी गहरी है कि सिर्फ बातों से उसे दूर करना मुमकिन नहीं। ये एक ऐसा जख्म था जो अभी तक मुंदमल नहीं हुआ था। फिर एक दिन वो लम्हा आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। उन्होंने मुझे बुलाया और बैठकर अपनी माँ के बारे में वो हकीकत बताई जिसने मुझे दंग कर दिया। मेरी आंखें खुली रह गई। मैंने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि हमारी ज़िंदगी की पेचीदगियाँ इतनी गहरी होंगी। उन्होंने बताया कि वो औरत उनकी सगी माँ नहीं थी, बल्कि सतीली माँ थी। मेरी सास के इंतकाल के बाद उनकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली थी। उन्होंने बताया कि बचपन में उस सतीली माँ ने उन पर सख्त जुल्म किए, इन्हें हमेशा अजनबी समझा और इससे ही बढ़कर उनकी छोटी बहन पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर उनके वालिद को उनसे दूर कर दिया। वालिदा ने जो अपनी नई बीवी के इश्क में गिरफ्तार थे उनकी बातों पर यकीन कर लिया और अपने बच्चों की हक तलफी कर दी। मैंने पूछा ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने तफसीर बताई। मेरी सगी माँ का इंतकाल मेरे बचपन में हो गया था। मेरे वालिद ने फ़ौरन ही दूसरी शादी कर ली और मेरी सतीली माँ ने छोटी बहन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। उसके बाद मेरे वालिद ने एक रात बगैर किसी को बताए मेरी बहन का निकाह किसी ऐसी आदमी से कर दिया जिससे वो बेखबर थी। वो एक बच्ची थी, सिर्फ इसलिए कि मेरी सतीली माँ ने कहा था। मेरे दिल में दर्द और गुस्सा दोनों पैदा हो गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक बच्ची के साथ इतना जुल्म किया जा सकता है और एक बाप इतना संग दिल कैसे हो सकता है। मेरे शोहर ने कहा कि वो खुद भी बचपन में उसको जुल्म का शिकार रहे और यही वजह थी कि उनके अंदर अपनी माँ सौतेली के साथ रिश्ता मजबूत नहीं हो सका। सौतेली माँ की सख्तियों और वालिद के फैसलों ने उनकी शख्सियत में एक ऐसी तलखी और तन्हाई डाल दी थी जो अब भी ज़ाहिर होती थी। मैंने महसूस किया कि शायद यही वजह थी कि उन्होंने कभी अपनी माँ के बारे में खुलकर बात नहीं की और मेरे साथ भी हमेशा मोहतात और दूर रहते थे। मुझे एकदम उनके पहले रवैये का पस मंज़र समझ आ गया। उनका गुस्सा और तलखी दरअसल बचपन के दबे हुए जख्म थे जो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। मैंने अपने दिल में ये फैसला किया कि अब हमें माजी के जख्मों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। मैंने अपने शोहर को कहा कि हमें अपने बच्चों के लिए मजबूत रहना होगा, हमें मोहब्बत एहतराम के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। हमने तय किया कि हम अपने बच्चों को खुशी और मुस्तक़बिल के लिए मजबूत रहेंगे और माजी की तलख यादों को दोबारा ज़िंदा नहीं होने देंगे। अब हमारा रिश्ता सिर्फ दो अफराद का नहीं बल्कि दो ज़ख्मों और रूहों का था जो एक दूसरे का सहारा बनना चाहते थे। मेरे शोहर ने भी वायदा किया कि वो अब कभी भी मेरे या बच्चों के साथ सख्त रवैया नहीं अपनाएंगे। वो दिल से यही चाहते थे कि हम सब एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारें और माजी के ज़ख्म हमारे रिश्तों को मुतासर न करें। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में कभी कभी दुख और दर्द हमें सिखाते हैं कि किस तरह मजबूत रहना है।
اور किस तरह मोहब्बत और सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारनी है और किस तरह माजी की तलखियों को दोबारा ना दोहराना चाहिए। अब हमारे घर में उम्मीद की एक नई किरण जाग चुकी थी। मैंने अपने बच्चों को भी समझाया कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन मोहब्बत और सब्र से हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। मैंने इन्हें बताया कि हमारे ख़ानदान में बहुत सारी तलख यादें हैं, लेकिन हम इन्हें दोबारा ज़िंदा नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों के खुशी और मुस्तकबिल के लिए मजबूत रहेंगे और इन्हें हमेशा ये सिखाएंगे कि इंसाफ और मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है। हमारा सफ़र मुश्किल ज़रूर था, लेकिन अब हम एक दूसरे का हाथ थामकर एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। मेरे दिल में अभी तक वो दर्द और हैरत ताज़ा थी जब मेरे शौहर ने मुझे अपनी सुतीली माँ की पूरी हकीकत बताई। वो औरत जो उनकी माँ बनकर घर में आई थी, दरअसल उनकी सगी माँ नहीं थी। बचपन में उसने ना सिर्फ मेरे शौहर पर जुल्म किए, बल्कि मेरी छोटी बहन पर भी झूठे इल्ज़ाम लगाकर हमारे ख़ानदान में वो नाकाबिले अबूर फासले पैदा किए जो कई साल तक ख़त्म ना हो सके। मेरी छोटी बहन जो मेरे दिल की टिकिया थी, इस जुल्म की सबसे बड़ी शिकार बनी। मेरी सुतीली माँ ने मेरे वालिद को इस हद तक बहकाया और झूठ बोला कि वालिद ने अपनी बीवी की बातों पर यकीन करके अपनी बेटी से दूरी इख्तियार कर ली। एक रात बगैर किसी तैयारी और मशवरे के मेरी बहन का निकाह किसी अजनबी आदमी के साथ कर दिएगा जिसे वो जानती तक नहीं थी। मुझे आज भी ये सोचकर गुस्सा आता है कि एक वालिद के लिए वो अपनी बेटी की खुशी और मुस्तकबिल की परवाह करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन मेरे वालिद ने अपनी बीवी की बातों में आकर ये गैर इंसानी फेल किया। मैंने महसूस किया कि मेरे शौहर का अपनी सास सुतीली माँ के खिलाफ गुस्सा जायज़ था, मगर इसका इजहार गलत था। मेरे शौहर ने बताया कि वो खुद भी बचपन में सख्त हालात से गुजरते रहे। सुतीली माँ के जुल्म सितम और वालिद के फैसलों ने उनकी शख्सियत पर एक गहरा और अनमेट असर छोड़ा। वो अक्सर खामोश रहते, अपने जज्बात अपने दिल में दबा लेते, किसी के साथ अपने दुख को बांटना पसंद नहीं करते। यही वजह थी कि मेरे साथ भी विपदा में सर्द और दूर दिखाई देते थे। ये सारी तलखी उनके अंदर एक लावा बनकर खौल रही थी जो कभी भी फट सकता था। मैंने उनकी इस कैफियत को समझने की कोशिश की और दिल में सोचा कि शायद वक्त के साथ और बच्चों की मौजूदगी से ये तलखी ख़त्म हो जाएगी। अब जब हकीकत सामने आ चुकी थी तो मैंने देखा कि मेरे शौहर अब अपने बच्चों के साथ मोहब्बत और ध्यान के साथ पेश आते थे। वो इन्हें खेलने के लिए वक्त देते, उनके खाने सोने के देखभाल करते, हर चीज़ में दिलचस्पी लेते। वो मुझे भी एहतराम और ताबन देते और हमारे दरमियान खामोशी के बावजूद एक नरमी और अपनायत पैदा हो गई थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा शायद यही वक्त है कि हम सब माजी की तलख यादों को छोड़कर आगे बढ़ें। माजी एक सबक होता है, जंजीर नहीं। मैंने अपने शौहर से कहा कि हमें अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत और सब्र के साथ रहना होगा, हमें अपने बच्चों के लिए मजबूत रहना होगा और माजी की तलख यादों को दोबारा ज़िंदा नहीं होने देना चाहिए। वो मेरे साथ बैठकर ज़ारो कुतार रोने लगे। उनकी आंखों में अपने बचपन के जख्मों की झलक थी। मैंने महसूस किया कि ये रोना सिर्फ दुख का नहीं बल्कि एक नई खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ करने की ख्वाहिश भी था। हमने फैसला किया कि हम सब अपने बच्चों के लिए खुशगवार और महफूज माहौल पैदा करेंगे। हमने तय किया कि माजी की तलख यादों को दोबारा ना दोहराना, बच्चों की परवरिश मोहब्बत, इंसाफ और इत्मीनान के साथ करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। मैंने अपने शौहर से कहा कि हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि मोहब्बत और सब्र से हर रिश्ता मजबूत हो सकता है और ज़िंदगी में कभी कभी मुश्किलात आएँ लेकिन इन्हें हल किया जा सकता है। ये हमारी ज़िंदगी का नज़रिया हयात बन गया। आपकी इस स्टोरी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।